जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं कृष्ण चैतन्य ईश्वरं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। Anita Mataji, yeah, please go. कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Mataji, your voice is somehow not coming. Thank you so much, Mataji and Nirbai Prabhu, for this wonderful kirtan. So, who all we have today in this wonderful Zoom room? We have a lot of wonderful devotees. So, I want to deeply express my deepest gratitude to all of you for joining today, and special gratitude to all the devotees who will be helping in this program. So I'll share the agenda, and then we can take it from there, if everyone is okay with that. So just in a few minutes from now,
you all will be going to different rooms as per this schedule. So that has already been set up. So you don't have to do anything, but you have the option, for those who are audience, you have the option to navigate to different rooms. Okay, so myself will be coordinating the exam for Nirbhay Prabhu, Madhu Satwani Mataji and Vinita Mataji. My wife Manjulali Priya Devi would coordinate for Ishan Prabhu, Renuka Mataji, Nithil Mataji. And room 3 will the conversation, Hindi mein baat hoga isme. तो मेरे माता पिता संतोष भाटिया माता जी एंड अश्विनी भाटिया प्रभु जी, तो नताशा माता जी से सवाल करेंगे गीता के वर्सेस का। तो जो लोग हिंदी बोलते हैं समझते हैं तो वो इस रूम में भी जा सकते हैं। Moksha Mataji will take for Tejas Krishna Prabhu and Haley Mataji. So my special gratitude to Natasha Mataji, Moksha Mataji and Manjulali Priya for helping in this coordination, and to one more devotee who is always working behind the scene, Vani Mataji and Shivangi Mataji. They are always very, very helpful in setting up all these programs. And to all the devotees who have learned these verses. This is no easy thing in life, right? We can learn so many things, formulas, calculus, Pythagoras, but all of you have taken time to learn the verses of Bhagavad Gita. This is the best thing. In Bhagavad Gita 17.15, it is said that the real tapa of Vani is Anudvega Karam Vakyam Swadhyaya, Anudvega Karam Vakyam Satyam Priyam Hitam Chayat, Swadhyaya Abhyasnam Chaiva, Vangmayam Tapa Uchyate. This is the real tapa of Vani, to engage our Vani, our ability to speak in glorifying Krishna, in chanting the holy names, in remembering Krishna. So I'm so grateful to all of you for taking out your valuable time to memorize these verses from Bhagavad Gita, and to everyone here, to your families, to your friends, to other devotees who are present. Some of your cameras are on, which is great. Some of your cameras is not on, which is also fine. But those who are participating in the exam, it's a must to keep the cameras on. So we know you're not cheating. That's just a joke. We all trust you a lot. But yeah, if possible, keep the camera on. So it kind of encourages everyone and also helps us to see your lotus faces. So is everyone ready to go to their respective rooms? So you know the magic mantra, right? Everyone knows the magic mantra to go to your room. Everyone knows? Raise your hand if you know the magic mantra. Navya knows the magic mantra. I know. Okay, Krishna also knows. And just keep in mind, you can always change the rooms. I tried my best to set it up, but you can always change your rooms if you have to, okay? And so let's unmute and together loudly chant the magic mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare Hare. Hare Krishna. You didn't chant with intensity. You have to chant with real intensity. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. To chant it 3 times. Hare Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, 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 Krishna Hare. Hari Bol. I think we are in room 3. Okay, Hare Krishna. Welcome everyone. आप सबको देख के बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी, माता जी, प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। ऑल ग्लोरी टू श्रीला प्रभुपाद। आपके चरणों में मेरा प्रणाम। आप तो बहुत सीनियर हैं, तो आपका मैं क्या एग्जाम लूं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता,
लेकिन मैं आपसे बस थोड़ा बहुत बातें करूंगी और ऐसे सवाल पूछूंगी। सब तो आपको आता ही है, बट शुभ विलास प्रभु ने ये इंस्ट्रक्शन दी है कि आपसे कुछ सवाल जवाब करने हैं। तो हाँ जी, ठीक है प्रभु जी, पहले आप लेंगे एग्जाम या पहले माता जी लेंगी? जैसे आपकी इच्छा हो माता जी। चलिए ठीक है प्रभु जी, पहले आपसे शुरू करते हैं। इज दैट ठीक ओके? है। ठीक है। तो प्रभु जी अगेन आई एम वेरी, मैं बहुत छोटी हूँ आपसे और आपकी ब्लेसिंग्स मुझे चाहिए। तो आप यहाँ पे आए एग्जाम देने के लिए भगवत गीता का और हमसे बातें करने के लिए, ये हमारे लिए एक बहुत ऑनर की बात है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो भगवत गीता की 50 वर्सेस का हम के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रभु जी, Ashwini Prabhuji, he is father of His Grace Shubh Vilas Prabhuji, who is a very senior advanced devotee, जिन्होंने हम सबको गाइड कर रहे हैं यहाँ पे। तो ठीक है प्रभु जी, हम शुरू करते हैं। तो प्रभु जी, सबसे पहले तो आप अपना कोई सबसे पसंदीदा मनपसंद श्लोका सुनाइए भगवत गीता में से। माता जी सुना रहा हूँ। 18वें अध्याय का है ये, 66 श्लोक है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो माम मोक्षामि मा शुचः। वेरी बोल, धन्यवाद प्रभु जी। वो तो सबका ही मनपसंद पसंदीदा श्लोका है, वो तो सारी भगवत गीता का सार है एक तरह से। तो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें कृष्णा क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? कृष्ण बोल रहे हैं कि आप अपने सभी मनो धर्म को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। हाँ जी, सही बात। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। अच्छा, फिर 18, चलिए कोई ऐसा भी श्लोका है इसमें, इन 50 श्लोकास में से जो आपने याद किया, जो संजय ने बोला हो? हाँ जी। जी प्रभु जी। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धना तत्र सृजि विजयो भुवि ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। वेरी बोल प्रभु जी, इसका मतलब बता सकते हैं आप? जी, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है और पार्थ अर्जुन है, और वहाँ पर ही मतलब नीति है और विजय है। और ये ऐसा संजय कह रहे हैं कि ऐसा मेरा मत है, वही नीति है, ऐसा मेरा मत है। जी प्रभु जी, बहुत बढ़िया, हरि बोल। तो प्रभु जी, आपको अगर मैं आपसे कोई क्रमांक पूछूं श्लोका का, आप वैसे भी बता सकते हैं? हाँ, थोड़ा या बहुत try- बता सकते हैं, कहीं कहीं हो सकता है कहीं मैं भूल जाऊं, पर मैं प्रयास करूंगा कि बता दूं। बाकी आप अगर श्लोक की हिंदी बोलेंगे तो फिर तो मैं शायद मतलब ऑलमोस्ट बता दूंगा। ठीक है प्रभु जी, चलिए ट्राई करते हैं। हाँ जी। आपको दूसरे अध्याय में का 20वां श्लोक आप बता सकते हैं? हाँ जी माता जी, जी प्रभु। ये आत्मा के बारे में है, आत्मा के बारे में है। जी, उसमें कृष्णा बोलते हैं कि वो उसका कभी जी, विनाश नहीं होता, न हाँ। जन्म लेती है। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बहुत बढ़िया प्रभु जी, धन्यवाद, थैंक यू, वेरी बोल। ठीक है, और आप ऐसा भी कुछ बोला है दूसरे अध्याय में ही कृष्णा ने कि अगर कोई व्यक्ति किसी विषय या वस्तु पे बहुत ज्यादा अपना मन केंद्रित करता है तो उससे क्या होता है? ध्यायतो विषयान् पुंसः संगोऽस्तु उपजायते संगात् जायते कामात् कामात् क्रोध विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति भ्रम स्मृति भ्रम बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। जी प्रभु जी, इसका थोड़ा अनुवाद या मतलब बताएंगे? का जब हम चिंतन करते हैं, ध्याय तो विषयान् संगोऽस्तु, तो उसमें हमारी आसक्ति होती है, और जब हमारी कामना में कोई रुकावट आती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से जो है हमारे को क्रोध सम्मोह मतलब होता है, और सम्मोह से क्या है कि हमारी
मतलब विस्मृति जो है वो मतलब बुद्धि जो है हमारी, और बुद्धि नाश होने से मनुष्य फिर दोबारा भवकूप में गिरता। जी प्रभु जी, ये पूरा एक चेन रिएक्शन ऐसे कृष्णा ने बताया ना, एक के बाद एक। ठीक है, बहुत बढ़िया। तीसरे अध्याय में चलते हैं प्रभु जी। तीसरे अध्याय में कहीं ऐसा इन 50 श्लोका में ऐसा बताया है कि मुझे खाना अर्पित करके खाओ, या यज्ञानि संतो मुच्यन्ते सर्वकल्पशे भुज्यन्ते ते अघम पापा ये पंचातात्मात् कारणात्। वेरी नाइस प्रभु जी। मुझे तो आपने तो सारा रट रखा है लगता है, सारी भगवत गीता तो आपको कंठस्थ है। तो ठीक है, कोई ऐसा भी कोई श्लोका है जिसमें कृष्णा बताते हैं कि अपने गुरु की शरण कैसे लेनी चाहिए? तद्विधि परिपादेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिस्तत्त्वदर्शिनः। मेरी बोल, तो क्या बताते हैं इसमें कृष्ण, कैसे शरण लेनी तो चाहिए? हमारे को जो है मतलब गुरु के पास मतलब नम्रता पूर्वक जाना चाहिए, और वो हमारे को उपदेश करेंगे क्योंकि वो तत्व को जानते हैं। जी जी प्रभु जी। तो ऐसे ही विनम्र भाव के बारे में कुछ कृष्णा 5वें अध्याय में भी बोलते हैं कि जो पंडित लोग होते हैं वो बहुत नम्र सब। विद्या विनय संपन्न है, ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनिचे कृपाके च पंडित समदर्शिनः। जी कि जो एक मतलब कि ज्ञानी पुरुष होता है तो वो एक गाय, हाथी, कुत्ता या चंडाल उनको मतलब संभाव से देखता है, क्योंकि वो आत्म तत्व को सभी में उसी को देखता है। जी प्रभु जी, आपको इसका क्रमांक याद है कि कौन सा नंबर का श्लोक है ये 5वें अध्याय से? 5वें अध्याय का है, स्टार्टिंग का है माता जी, शायद 12 में भी 18। ये 18वां श्लोक है। यस प्रभु जी, यस। और आपको इसी अध्याय में एक का सबसे आखिरी श्लोक याद है? भोक्तारम यत्तत्साम सर्वलोक महेश्वरम सिद्धे सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांति मृच्छति। ये बोल, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं कृष्णा? भगवान बताते हैं कि भोक्तारम, मैं सभी जो है मतलब यज्ञों का भोक्तारम, सभी यज्ञों का, तपस्याओं का भोक्ता हूँ, और सभी लोगों में महेश्वर हूँ, और ये जानकर जो है मतलब भक्त लोग हैं मतलब परम शांति को प्राप्त करते हैं। बोल, यस प्रभु जी, धन्यवाद, वेरी नाइस। तो कहीं पे कृष्णा ने ऐसा भी बताया है कि हमें मृत्यु के समय कैसे शरीर का त्याग करना चाहिए, किस भाव से? अंत काले च मामेव स्मन्मुक्ता क्लेवरम स प्रयाति समद्भवम याति नास्ति संशय। जी प्रभु जी। हम ये इससे नेक्स्ट श्लोक है। हाँ जी प्रभु जी, यस। यम यम वापि स्मद्भावम तज्जन्ते क्लेवरम तम तम वेति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। प्रभु जी बहुत, आप तो एकदम सब याद है आपको, इट्स वेरी माता इंस्पिरेशनल। जी ऐसे मतलब इसमें पता नहीं, हमने थोड़ा सा प्रयास किया है, मैंने कहा सारे बच्चे सुना रहे हैं तो हम भी थोड़ा सा ट्राई करते हैं तो शायद हो जाएगा। हाँ प्रभु जी, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। तो आपने बहुत अच्छे से, आप देखिए थोड़ा भी प्रयास करते हैं, आप बोल रहे हैं तो कृष्णा कितना अच्छे से मदद करते हैं, पर आपको तो बहुत अच्छे से याद है। इसलिए क्या है ना माता जी, हमारी इंटेलिजेंस नहीं है, जैसे 10वें अध्याय में कह रहे हैं कि तेषाम सत्युक्ता नाम भजतम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगेनतम येन माम ज्ञान्ति। तो भगवान स्वयं भी फिर हमारे को इंटेलिजेंस देते हैं, मतलब बाय विच मतलब वी कैन रीच टू देम, मतलब तो ये इंटेलिजेंस जो है भगवान ही देते हैं। तो मतलब एक श्लोक में और भी कोट करते हैं 15वें अध्याय में ऐसा है। जी प्रभु जी। ये वाला जो आपने बताया श्लोका, आप इसका और भी कुछ बताते हैं कि मैं बुद्धि देता हूँ, और इसके अगले श्लोका में भी कुछ बताते हैं कि मैं क्या देता हूँ, ऐसा कुछ याद है? तेषाम अनुकंपार्थ अहम अज्ञान जनतम नाश्यामि आत्मभास्तो ज्ञान दीपेन भास्वा। जी प्रभु जी। तो पहले बोलते हैं कि ददामि बुद्धि योगम तम, और इसमें बोलते हैं तेषामेवा अनुकंपार्थम, कि मैं अपनी अनुकंपा देता हूँ, कृपा देता हूँ। जी अच्छा, आपको 9वें अध्याय का दूसरा श्लोका सुना सकते हैं? दूसरा? यस जी प्रभु जी। राजविद्या राजगुह्यम पित्तम उत्तमम प्रत्यक्षावागमन धर्मस्य सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अरे बोल प्रभु जी, आपसे तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या पूछूं, ये सब आपने एकदम इतना अच्छे से याद है कि
कुछ पूछते बन नहीं रहा। अच्छा, एक जगह पे कृष्णा से भी बोलते हैं कि अगर कोई मेरा भक्त अनन्य भाव से मेरी सेवा करे, पूजा करे, अन्या चिंतयन्तु मां केचन परिपास्येते नित्ययुक्तानां योग्यमहम्यहम्। जी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है श्लोक का। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। चलिए आगे देखते हैं। कहीं पे कृष्ण ने ऐसा भी बोला है कि मैं आपके शरीर, आपके हृदय में रहता हूँ, हृदय में स्थित हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति ब्रह्म्यं सर्वभूतानि यंत्रवाणी माया। जी जी प्रभु जी। एक और भी कोई ऐसा श्लोक है जिसमें ऐसा कहा गया है, वो भी बता सकते हैं? कौन से अध्याय में से? प्रभु जी 15 अध्याय में बोलते हैं कृष्णा कि मैं आपके हृदय में रहता हूँ। सन्निविष्टो मता स्मृतिर्ज्ञानमपोनम च वेदस्य सर्वै रामेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। पर ये तो नहीं है शायद। हाँ हाँ, यही है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो की मैं। हाँ हाँ, इतने सन्निविष्ट भैया आ गया, ठीक है। तो पहली पंक्ति में बोलते हैं कि मैं आपके हृदय में रहता हूँ। हाँ हाँ, पहली पंक्ति में बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या बोलते हैं ये बताएंगे आप? इस श्लोक में आगे क्या बोला? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मता, मैं ही मतलब मेरे द्वारा ही समृद्धि ज्ञान और विस्मृति प्राप्त होती है। वेदों का संकलन करता मैं हूँ और वेदों द्वारा जानने योग्य भी मैं हूँ। जी, देखिए सारी स्मृति और ज्ञान देखिए अभी जो आपको आ रहा है वो कृष्णा ही दे रहे हैं इस टाइम। तो वो बैठ के देख रहे हैं अभी हम, क्योंकि उन्हीं की वाणी को हम कर रहे हैं ग्लोरीफाई, तो वो भी बैठ के सुनते हैं। ठीक है प्रभु जी। और 16 अध्याय में से कोई श्लोक सुना सकते हैं? माता जी एक ही श्लोक है शायद जी। या शास्त्रविधि उत्सृज्य वर्ते काम कार न सिद्धि हम आपनो न, या शास्त्रविधि उत्सृज्य करते काम कार न सिद्धि वापनोति न सुखम न प्राप्ति। जी, वेरी नाइस। तो इसमें क्या बोलते हैं कृष्णा? तो मतलब शास्त्र को मतलब अवहेलना करके अपने मन के अकॉर्डिंगली कार्य करता है, तो भगवान बताते हैं ना तो उसको सिद्धि प्राप्त होती है, ना सुख प्राप्त होता है, ना गति प्राप्त होती है। जी प्रभु जी। चलिए मैं आपसे बस एक आखिरी पूछती हूँ, फिर माता जी से पूछेंगे। तो अर्जुन ने जब कृष्णा को पूरी तरह से समर्पण किया था और अपना गुरु माना था, तो उसने क्या श्लोका बोला था? कार्पण्य दोषो स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेषा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां तां प्रपन्नम। बोल थैंक यू प्रभु जी। आपने तो आई थिंक पास नहीं किया, आपने तो बस सब अच्छे से ऐसे रट लिया है कि मैं आपको क्या पास करूंगी इसमें। मेरे को लगता था माता जी मैं कर नहीं पाऊंगा, बस थोड़ा सा मैंने प्रयास किया है, मतलब तो हो गया, बाकी भगवान की कृपा से हो गया। मतलब हाँ जी, नहीं प्रभु जी आप इंटेलिजेंट बहुत बहुत प्रयास किया, इसमें से थोड़ा प्रयास नहीं, बहुत प्रयास लगता है। तो ऑल ग्लोरीज टू यू प्रभु जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से बोला आपने। ठीक है, चलिए माता जी से कुछ सवाल पूछते हैं। इज दैट ओके माता जी? तो जो लोग देख रहे हैं, सो दिस इज संतोष माता जी, शी इज मदर ऑफ हिज ग्रेस शुभ विलास प्रभु, जो हमको काफी टाइम से गाइड कर रहे हैं और हमको इस पथ पे बने रहने के लिए अच्छे से प्रेरणा देते हैं। तो माता जी ऑल ग्लोरीज टू यू। तो सारे सोर्स तो आप ही हैं जहाँ से सारा ज्ञान उनको आ रहा है, और आपके ज्ञान की तो फिर क्या हम यहाँ पे परीक्षा लेंगे। लेकिन फिर भी कुछ सवाल जवाब ऐसे माता जी आप इसमें संतोष कीजिए, क्योंकि माता जी आपकी सेवा है, और सेवा तो देखो हर एक को करनी पड़ती है। उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई आप हमारे से हो सकता है मतलब उम्र में छोटे हो लेकिन भक्ति में हमारे से भी ज्यादा हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं प्रभु जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपके तो सारा सोर्स भक्ति का आपके घर में है देखिए। लेकिन माता जी बस थोड़े बहुत सवाल जवाब करेंगे, ठीक है? बस 10-15 मिनट के लिए। तो चलिए आप भी ऐसे ही शुरू करते हैं। आप बताइए कि आपका सबसे पसंदीदा श्लोक कौन सा है इन 50 में से? तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिं तद्दर्शनम्। वेरी बोल। सो माता जी ये क्यों पसंद है आपको ये श्लोक?
बस वैसे ही कि हम गुरु की शरण में जाना चाहिए और उनसे ज्ञान लेना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जी, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कृष्णा इस श्लोका में? इसमें कह रहे हैं कि गुरु के पास जाके विनम्र भाव से जाओ, जिज्ञासा करो, क्योंकि गुरु ही है जो तुम्हें सत्य का ज्ञान कराएगा, क्योंकि उन्होंने सत्य का ज्ञान कर लिया है। जी, हरि बोल। ठीक है माता जी, भगवत गीता का सबसे पहला श्लोका वो सुना सकते हैं? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतयु स्वमाम का पांडवस्य किम कुरु संजय। मेरी बोल, माता जी ने तो एकदम फटाफट से बहुत जल्दी जल्दी अच्छे से कंठस्थ किया हुआ है। तो ये किसने बोला था माता जी श्लोका? धृतराष्ट्र। क्या बोलते हैं धृतराष्ट्र इसमें? धृतराष्ट्र ने संजय से बोला कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे तथा पांडवों के पुत्रों में क्या हो रहा है। ठीक है, वो उनसे पूछ रहे थे कि बताओ ये क्या हो रहा है, ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। ठीक है माता जी। और दूसरे अध्याय में कृष्णा ऐसा बताते हैं कि जो धीर पुरुष होते हैं वो शरीर में आने वाले जो चेंजेस होते हैं कि वृद्धावस्था या बीमारी से कभी विचलित नहीं होते। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कुमारं यौवनं जरा ज्ञानतर प्राप्ते धीरस्य से न भूति। ये बोल। ठीक है माता जी, दूसरे अध्याय का कोई और आपका कोई पसंदीदा श्लोका सुनाएंगे? कार्पण्य दोषो भावे प्रच्छामि तां ब्रह्मोसेता यस्य साई निश्चितं भुवि तन्मे शिष्यस्तेयं शादि मां तां प्रपन्नम्। हरि बोल। तो इसमें क्या बोलते हैं अर्जुन? इसमें अर्जुन कह रहे हैं कि अब मैं अपना मतलब सब कुछ भूल गया हूँ और धैर्य खो चुका हूँ, इसलिए मैं अब आपकी शरणागत हूँ और मुझे जो भी मेरे लिए शेखर है वो आप बताओ। जी, हरि बोल। ठीक है। अब दूसरे अध्याय में ही कृष्ण ऐसा भी कुछ बताते हैं कि अगर उत्तम रस का अनुभव हो जाए तो जो निचले रस होते हैं वो अपने आप छूट जाते हैं। विषयाविने वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जन रसोपि यस्य परम दृष्टा निवर्तते। हरि बोल। बोल। ठीक है, थैंक यू माता जी। चलिए आगे देखते हैं। चौथे अध्याय में कृष्णा ने ऐसा बताया है कि जो ये ज्ञान था ये धीरे धीरे नष्ट हो गया था, परंपरा में आते आते नष्ट हो गया था। तो राज ऋषो विदु एवं परम प्राप्तिम राज ऋषो विदु शाखा लेन महता योगो नच परम तप। मेरी बोल। तो ये तो बहुत ही पावरफुल श्लोका है। ये आपको इसका क्रमांक याद है? हाँ, ये ज्ञान शुरू से परंपरा द्वारा प्राप्त है और राज ऋषियों ने भी इसे अपनाया था और ये लेकिन काल के क्रम से नष्ट हो गया था। जी, नंबरिंग 4 की 2। ओके, हरि बोल, थैंक यू। फोर्थ में ही चौथे अध्याय में ही कृष्णा ऐसा भी कुछ बताते हैं कि मैं क्यों इस धरती पे आता हूँ, क्या करने आता हूँ। उनको तो आने की जरूरत नहीं है जन्म लेने की, फिर मैं क्यों आता हूँ? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। जी माता जी। इसके बाद है पवित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरी बोल। ऐसा ही कुछ चौथे अध्याय में कृष्ण ऐसा भी कुछ कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस भाव से मुझे समर्पण करता है उसी भाव से मैं उसको प्राप्त होता हूँ, या उतना ही मैं उसको जितना मुझे कोई जानने का प्रयास करता है उतना ही वो जान पाता है, ऐसा कुछ कहते हैं। यथा मां प्रपद्यन्ते नमस्ते भजाम्यहं मम वर्तमानो वर्तते मनुष्यपात् सर्व मम मनुष्यपात् सर्व। हरि बोल। माता जी इसका अपने शब्दों में कुछ बताएं, मतलब? हाँ, मतलब जिस भाव से मनुष्य मुझे भजता है मैं उसी भाव से उसे फल देता हूँ, लेकिन सभी मेरे इस पथ का अनुगमन करते हैं। बोल। अच्छा, पांचवें अध्याय में ऐसा कुछ बोलते हैं कृष्णा कि जो भी विषय वस्तु होते हैं जो दुख करते हैं, दुख का कारण होते हैं, उसमें बुद्धिमान लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। होगा दुख योग आदि अंत बता कौनते नाते शूरंते बुधा।
जी हरि बोल। माता जी आपको भी, आपको और प्रभु जी दोनों को बहुत अच्छे से सब कंठस्थ किया हुआ है। देखिए सब कृष्णा भी बैठ के देख रहे हैं, सब देवतागण भी फूल बरसा रहे हैं और आपको आप ठीक से बोलते ही जा रहे हैं। देखिए कुछ मुझे है ही नहीं पूछने के लिए, फिर भी मैं एक दो चीजें और पूछ लेती हूँ। छठे अध्याय में से कोई श्लोका सुनाएंगे आप? बंधुरात्मनास्तु ये नात्मात्मा जीते अनाथात्मसु शत्रु तवे वर्तेतात्मना शत्रुवत्। इसमें क्या बोलते हैं कृष्णा? इसमें कृष्ण कहते हैं जिसने मन को जीत लिया उसका मन मित्र है और जिसने नहीं जीता उसका मन शत्रु है। हरि बोल। देखिए कितनी प्रभु जी ने कैसे 50 कितने पावरफुल श्लोका इकट्ठे किए हैं। सारा ज्ञान इनमें केंद्रित हुआ है। ठीक है, आप मैं आपसे क्रमांक से पूछती हूँ एक दो, अगर आपको आएगा तो बताइए। 7वें अध्याय का 7वां श्लोका सुना सकते हैं? मता प्रकरम नहीं हाँ मता जी। प्रकरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वदं पौत्रा सूत्रे मणिगणाय। इसमें कृष्ण ने एक बड़ी सुंदर सी वो दिया है एनालॉजी। ये धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में पिरोए होते हैं इसी प्रकार ये सब कुछ मेरे पर ही आश्रित है। जी मेरी बोल। ठीक है माता जी, चलिए 9वें अध्याय पे चलते हैं। उसमें ऐसा कुछ बोलते हैं कृष्णा कि मुझे कोई कुछ भी दान करे मेरा भक्त प्रेम से तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ। क्या क्या चीज? फलम तो बोल। थोड़ा सा आई थिंक आपका इंटरनेट स्लो हो गया शायद। आप सुन सकते हैं मुझे माता जी? अच्छा, इसका अगला श्लोक भी सुना सकते हैं माता जी और इनके क्रमांक भी बता सकते हैं? ओके, लगता है कि वो ड्रॉप आउट हो गए। Anyone else wants to do the exam? शीतल माता जी, मॉम, I'll just pause for now. ठीक है, आई थिंक हमारा ज्यादा नहीं बचा तो I'll just 2-3 और कुछ सवाल पूछ के फिर खत्म करते हैं हम। और आप तो बहुत अच्छे से बोल रहे हैं। मैं आपसे वो पूछ रही थी कि आपने सुनाया था कि कृष्णा बोलते हैं कि जो भी मुझे प्रेम से मेरा भक्त अर्पित करता है वो मैं स्वीकार करता हूँ। उसका अगला श्लोक भी आप सुना सकते हैं? यत् करोषि यज्ञोषि यज्ञ यत् तत्पुरुष यत् करोषि यज्ञोषि यज्ञ ददासि यत् तपस्वी कौन्तेय तत्पुरुषं मदर्पणम्। जी माता जी, यत् करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासि यत्। तो इसका मतलब क्या समझते हैं आप? जो भी करो, जो भी खाओ और जो भी मतलब दान करो, जो भी तपस्या करो वो सब मुझे अर्पित करते हुए करो। जी माता जी जी। 10वें अध्याय में जो चतुर्श्लोकी भगवद गीता आती है उसका आप पहला श्लोक सुना सकते हैं? अहम सर्वस्य सर्वप्रवृत्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव सम्यक्। जी बोल। इसका क्या अर्थ है माता जी? जो भी भौतिक और आध्यात्मिक जगत के कारण है वो सब मुझके द्वारा ही उद्भूत है और मैं सभी जो भी मेरी भक्ति करता है तो वो उसे वो प्राप्त होता है। जी, तो जो बुद्धा भाव समन्विता, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह ये भली भांति जानता है और इसलिए वो मेरी प्रेम भक्ति में लगता है। इसी अध्याय में माता जी बाद में अंत की तरफ कृष्णा बोलते हैं कि वो सारा अपना विभूति सारी ऐश्वर्या बताते हैं, फिर बोलते हैं कि ये सारे ऐश्वर्या तो मेरे बस एक तेज का छोटा सा अंश मात्र है। ऐसा कैसे बोलते हैं वो? विभूति मत्सत्वं श्रीमती ऊर्जितम वेवा तत् अवगच्छत्वाम मम तेजो असंभवम्। जी भी बोल। तो ठीक है, थोड़ा आगे देखते हैं। 14वें अध्याय में कृष्णा ने ऐसा कुछ बताया है कि
कि जो मुझे भक्ति योगा से मेरी सेवा करता है वो ब्रह्मन के स्तर पे पहुंच जाता है, ब्रह्मन तक पहुंच जाता है। माम च योगचारिणी भक्ति योगेन सेवता सागुणाम संदित्ते तानि ब्रह्मभुवाय कल्पते। जी बोल, ये इसका क्रमांक भी पता है माता जी आपको? जो 14वें का 26। ओके, यस, हरि बोल। अगर आपको कोई बोले कि अगर कोई आपसे पूछे कि कृष्णा ने ये कहाँ कहा है कि सब जीव तो मेरे ही अंश हैं, तो आप किसी भगवत गीता की वर्ष से ये श्लोका से प्रूव कर सकते हैं कि सब तो कृष्णा से ही उत्पन्न होते हैं, सब उन्हीं के अंश हैं। ऐसे कई वर्सेस आ सकती हैं, कई श्लोक आ सकते हैं, आपको जो ठीक लगे आप बता सकते हैं। एक तो 15 अध्याय में आता है। जी, तो कैसे, क्या बोलते हैं उसमें कृष्णा? सभी ये जो सब बद्ध जीव हैं वो मेरे ही अंश हैं, और ये जो बद्ध जीव हैं इस भौतिक प्रकृति के 6 इंद्रियों से संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। जी जी, सही, बिल्कुल सही। और ऐसा कोई पूछे आपसे कि ये कैसे कृष्णा ने कहा है, आप लोग बोलते हैं भक्ति करो भक्ति करो, कहाँ कहा है कृष्णा ने कि भक्ति योग से ही जान सकते हैं कृष्णा को, कि भक्ति योग ही श्रेष्ठ है, मेरा भक्ति मुझे जान सकता है? ऐसा भी कई तरीके के श्लोकों में डिफरेंट तरीके से कहा है, जो आपको ठीक लगे आप बता सकते हैं। एक तो 18वें अध्याय में ऐसा बोलते हैं कृष्णा, भक्त्या मां भी जानती यावन् ततो माम तत्त्वं तु ज्ञात्वा शान्तिमेच्छति। विशते तदनंतरम, भक्त्या मामाभिजानाति यावान यश्चस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। जी माता जी, तो इसमें ये है 18वें अध्याय का 55 श्लोका। जी, इसमें कृष्णा क्या बोलते हैं आप बताएंगे? भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है, और जो मेरी निरंतर भक्ति में रत रहते हैं तो उसे जी, उससे मेरे लोक में, मेरे लोक में वास कर सकते हैं। जी, मेरे लोक में वास कर सकते हैं। और ऐसा भी कहीं कृष्णा बोलते हैं कि मुझे अपने मन में रखो, मुझे नमस्कार करो, प्रणाम करो। और ऐसा करने से तुम मेरे पास आओगे। जी मां नमस्कुरु मम्मी वेशस्वी कौन्त्यं ते मम्मी वेशस्वी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोस्मि। कहते क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो तो तुम मेरे पास आओगे अगर ऐसे करोगे। जी ओके माता जी, आपने तो सारे श्लोका बहुत अच्छे से सुना दिए। आप नॉट ओनली पास्ड, यू पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। तो बहुत आई होप आपको भी, आपने एंजॉय किया ये एक्सपीरियंस, भगवद गीता के श्लोका सुनाने का भी मौका, और उनको डिस्कस करना बहुत आनंद देता है। तो आपको कैसा लगा? आपने पास किया, आपको अच्छा लगा। तो आप तो सबके लिए प्रेरणा है। देखिए यहाँ पर एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ है, वो भी याद कर रही हैं, तो उनके लिए भी, सबके लिए प्रेरणा है। हम बच्चों के लिए भी, मेरी मॉम एक्चुअली वो भी यहीं पे हैं, इसी ग्रुप में देख रहे हैं आपको। तो देखिए आपने इतने अच्छे से सुनाया, याद किया, सब अनुवाद याद है आपको, और मतलब, और उसको कैसे कैसे कहाँ पे यूज करना है। जैसे प्रभुपाद में तो बोलते थे कि मेरे जो भक्त होता है एक लॉयर की तरह होना चाहिए, एक वकील, जो अगर उससे कुछ पूछा जाए तो वो बता सके कि देखो कृष्णा ने यहाँ पर ये कहा है भगवद गीता में, मैं प्रूफ करके बताता हूँ, कृष्णा ने यहाँ पे ये बोला है। ऐसे आप कर सकते हैं। देखिए अब आपको ये 50 श्लोक याद है, और अब आप और भी आगे याद करेंगे। अब तो याद करना और आसान हो जाएगा, एक बार इतना याद हो जाए तो थैंक यू सो मच। प्रभु जी, कोई और क्वेश्चन पूछना चाहेगा?
माता जी से थोड़ा सा माता जी ऐसे है भगवत गीता के बारे में कि गीता गंगोत्री पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो माता जी इसमें ऐसा है कि जो भी मतलब इसको मतलब ध्यान से पढ़ता है सुनता है तो भगवान उससे स्वयं भी रेसिप्रोक करते हैं। और ये मतलब सभी जो है हमारे अभद्रों को समाप्त करने वाले हैं। अब जैसे गंगा में कोई स्नान करता है तो उसकी ठीक है वो भी हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं, लेकिन गीता रूपी गंगा में स्नान करने से हमारे पाप करने की प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाती है। तो इसमें भगवान मतलब इस तरीके से जो इन्होंने है, और ये क्या है सकल जितने भी शास्त्र हैं उनकी स्वामिनी है। और मतलब इसको पढ़ने के बाद मतलब कि आदमी को तत्व से मतलब सब भगवान के बारे में मतलब पता चल जाता है। तो ये हमारा एक मैनुअल भी है सभी का। तो अगर हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे को सबको लाभ होगा। जो भी इसको पढ़ेगा मनन करेगा तो उसके चित्त की मतलब शुद्धता होगी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। देखिए आपको तो पूरा गीता महात्म्य भी अच्छे से पता है। थैंक यू प्रभु जी। आप हमें भी ब्लेसिंग्स दीजिए कि हम भी आशीर्वाद दीजिए कि हम भी आगे आगे बढ़ें और याद करें। बट आई थिंक वही टाइम हो गया। किसी और को ऑडियंस में कोई क्वेश्चन पूछना है प्रभु जी से, माता जी से? दे पास्ट विद फ्लाइंग कलर्स। हरे कृष्णा। मंजुलाली माता जी, आपको कुछ पूछना है या अतुल प्रभु इज हियर? प्लीज आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मे बी लास्ट 1 या 2 सवाल, नहीं तो हम रूम स्विच करते हैं। ओके ठीक है। तो वो से हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे राम राम राम